وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا ایکس پر پیغام، کہتے ہیں کہ کالعدم دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی اپنے واٹس ایپ چینلز چلا رہی ہے۔ ٹی ٹی پی اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کی تشہیر کے لیے واٹس ایپ پیغامات بھیج رہی ہے۔ پاکستان ان دہشت گرد گروہوں کے لیے زیرو ٹالرنس رکھتا ہے۔ پاکستان عالمی امن کو یقینی بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دے رہا ہے۔ عالمی برادری سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے خلاف لڑنے میں ہماری مدد کرے۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل بتائیے گا مزید کیا کہتے ہیں طلال چودھری؟ دیکھیں، بہت اہم معاملے کی جانب وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے دنیا کی توجہ، عالمی اداروں کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ اقوام متحدہ اور امریکی نامزد دہشت گرد تنظیم جو ہے ٹی ٹی پی وہ اپنے واٹس ایپ چینل چلا رہی ہے، اور ٹی ٹی پی جو ہے یہ پرتشدد اور نفرت انگیز نظریے کو پھیلانے کے لیے ان واٹس ایپ چینل کا سہارا لے رہی ہے اور اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کی تشہیر کر رہی ہے، اور اس کے لیے واٹس ایپ پیغامات جو ہیں وہ بھجوائے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ان دہشت گرد گروہوں کے لیے زیرو ٹالرنس رکھتا ہے، اور پاکستان عالمی امن کو یقینی بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں بھی دے رہا ہے۔ تو عالمی برادری سے انہوں نے درخواست کی ہے، اور خاص طور پہ جو واٹس ایپ کی جو کمپنی ہے اس کی بھی توجہ مبذول کرائی ہے، اور ان سے بھی درخواست کی ہے کہ اس لعنت کے خلاف، دہشت گردی کی لعنت کے خلاف لڑنے میں وہ ہماری مدد کریں، کیونکہ انہوں نے ساتھ ان کے وہ اسکرین شاٹ جو ہیں وہ بھی یہ ساتھ لگائے ہیں اس اپنی ایکس پوسٹ میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح یو این اور یو ایس ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے، واٹس ایپ چینلز کے ذریعے جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے، اور اپنے بلک میں واٹس ایپ میسیجز جو ہیں وہ اپنے وائلنٹ اور ہیٹ فل آئیڈیالوجی کو جو اسپریڈ کرنے کے لیے اور جو ہارم فل نیریٹو ہے اس کو پھیلانے کے لیے، اور اپنی دہشت گردانہ کاروائیاں جو ہیں ان کو گلوریفائی کرنے کے لیے یہ استعمال کر رہی ہے۔ تو ایسے میں واٹس ایپ کو بھی کہا ہے کہ وہ اس میں کوآپریٹ کریں پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں، اور یہ اکاؤنٹس جو ہیں یہ بلاک ہونے چاہیے، اور ایسے الگورتھم جو ہیں انہوں نے کہا ہے، درخواست کی ہے کہ یہ بنائے جائیں جو ان کو آٹو ڈیٹیکٹ کریں اور آٹو سسپینڈ کریں ان ہینڈلز کو اور ان نمبرز کو۔ جی اچھا عدیل، یہ بتائیے گا کہ آپ کے انالیسز میں یہ کس طرح سے تشہیر ہو رہی ہے، اور کن کن کو یا کس طرح سے واٹس ایپ پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، واٹس ایپ کے اوپر کوئی ایسا چونکہ میکانزم نہیں ہے کہ کوئی بھی واٹس ایپ چینل بنا کے اس میں وہ بہت سے اپنے فالوورز جو ہے وہ بنانے کے لیے اقدامات کر سکتا ہے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے جو مختلف گروپس ہیں وہ اپنے واٹس ایپ چینل بنا کے اور پھر وہ لوگوں کو اپنے نیریٹو کی تشہیر کر رہے ہیں، اور اس میں ایسا کوئی میکانزم جو ہے وہ موجود نہیں ہے واٹس ایپ چینلز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے حوالے سے کہ جو اس طرح کی اسپیچ جو ہوتی ہے، کوئی ہارم فل نیریٹو ہے، ہیٹ فل آئیڈیالوجی ہے، اس کو اسپریڈ کرنے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں، کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں، ایسے پلیٹ فارمز جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک ہو یا کچھ دیگر پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، تو وہاں پر ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن واٹس ایپ چینل کا جو فینومینا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے گروپس جو ہیں، ایسے چینل جو ہیں وہ بن رہے ہیں جس میں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ لائیولی میں ان کو جب فالو کرتے ہیں یا یہ اپنے فالوورز کو اپنی ہیٹ فل آئیڈیالوجی اور وائلنٹ اپنی جو کانٹینٹ ہے وہاں پہنچانے کے لیے اس پلیٹ فارم کا سہارا لے رہے ہیں، اس پلیٹ فارم کا سہارا لے رہے ہیں، اور اسی تناظر میں یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عدیل وڑائچ آپ کا۔ کے پی اسمبلی کی مخصوص سیٹوں پر منتخب 25 ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کندی کی جانب سے ارکان سے حلف لیا گیا۔ جے یو آئی کے 9، نون لیگ کے 8، پیپلز پارٹی کے 5 ارکان شامل، اے این پی کے 2، پی ٹی آئی پی کے 1 رکن نے حلف اٹھایا۔ اس سے قبل کے پی اسمبلی میں مخصوص سیٹوں پر منتخب ارکان حلف نہیں اٹھا سکے تھے۔ کے پی اسمبلی اجلاس شروع ہوتے ہی حکومتی ارکان نے کورم کی نشاندہی کر دی۔ اسپیکر کی جانب سے کورم پورا نہ ہونے پر بغیر حلف لیے ہی اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کر دیا گیا۔ علی امین گنڈا پور کا مخصوص نشستوں کی حلف برداری کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ، کہتے ہیں کہ ریٹ پٹیشن مکمل کر لی، کل ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے۔ مخصوص نشستوں پر گورنر ہاؤس میں حلف آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 65 واضح ہے کہ حلف صرف اسمبلی فلور پر ہو سکتا ہے۔ اسپیکر نے حلف لینے سے انکار نہیں کیا۔ کورم مکمل نہ ہونے پر اجلاس ملتوی ہوا۔ وزیر اعلیٰ اسپیکر حلف لینے سے انکار کرے تو چیف جسٹس کسی کو نامزد کر سکتا ہے۔
सेनेट इलेक्शन में पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों का ये मामला है। एक नाराज उम्मीदवार को मना लिया गया। वकास औरकजई का कागजात वापस लेने का फैसला। वकास औरकजई की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वकास औरकजई ने हमेशा पार्टी और बानी के मफाद का सोचा है। वकास औरकजई से बातचीत की गई, जिसके बाद उन्होंने आमादगी जाहिर कर दी। मैं शुक्रगुजार हूँ वकास भाई का कि उन्होंने हमेशा की तरह अपने ज़ाती मफाद को नहीं बल्कि हमेशा इमरान खान के हुक्म को और पार्टी के मफाद को देखा और हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर इन्होंने अपने कागजात वापस करने, सेनेट इलेक्शन से वापस लेने के लिए आमादी का इजहार किया। और मैं आखिर सीता कहूँगा कि यही वो लोग हैं, यही हमारी पार्टी की वो मजबूत एक पार्टी का एक सिस्टम है जिसकी वजह से इंशाअल्लाह हम एक जिहाद कर रहे हैं और इस जिहाद के अंदर इंशाअल्लाह पार्टी ने पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करने के लिए इमरान खान की तहरीक में माशाअल्लाह टक्कर दी हुई है पूरे निज़ाम को। मैं बिल्कुल कागज़ वापस ले रहा हूँ। अली भाई के साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। इसमें जो मेन किरदार और जो जिस बात पे मुझे शक था वो हमारे जो नकवी साहब हैं, उन्होंने मुझे लेटर पे भी और ट्वीट पे भी कहा, मुझे पर्सनल लेटर भी भेजा, फिर मुझे कॉल की। इसके अलावा बैरिस्टर गौर, सलमान राजा साहब ने, इन सब लोगों ने मुझे ये बात साबित की कि ये लिस्ट खान साहब ने अप्रूव की है, तो इसलिए मैं वापस कागज़ ले रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने नज़रिए से या किसी के दबाव में कर रहा हूँ। मैं सिर्फ नकवी साहब ने जो मुझे कहा है मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ। और भाई कि थैंक यू कि अली भाई ने मुझे इज़्ज़त दी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिटायर कर रहा हूँ सेनेट इलेक्शन से। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मैंने आइन के मुताबिक अरकान से हल्फ लिया है। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में एक फार्मूला तय पाया था। सूबाई असम्बली में आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। उसी चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया जिस चीफ जस्टिस के ओटे की सेरेमनी में इसी मेरे दाएं साइड पे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे। उन्हीं का फैसला था कि जो है आप ओथ लें, और मैंने उसके एन मुताबिक ओथ लिए। मैंने जो है आइन की पासदारी की है। मैंने लीडर अपोजिशन के साथ भी मीटिंग करनी है। अगर हम अपने फार्मूले पे पूरे उतरे, अब तो नहीं हो सकते क्योंकि डेट विड्रा नहीं हो रहे, फिर शायद हम कोशिश करें कि हम 6-7 सेंटर्स बनाएं, क्योंकि इस वक्त 30 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असम्बली में। उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी हो सकती है। तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो कि हम 6-7 की तरफ जाएँ। अब जैसे हमें लीडर ऑफ दी अपोजिशन हमें ब्रीफ करेंगे तो उसके मुताबिक फिर हम अपना अमल आज रात को तय करेंगे। नाराज रुकन खुरम सेशान का दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सोमवार को सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज मिल सकता है। आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में 60 MPs ने अली अमीन गंडापुर को कहा कि आप ज्यादती कर रहे हैं। इजलास के लिए वज़ीर आला साहब ने बुलाया था, तो उन 60 के 60 ने ये बात वहां पर की कि ये ज्यादती कर रहे हैं, आप लोग ये ज्यादती ना करें। अगर ये बातें कर रहे हैं लोग तो मैं चाहूंगा कि जरूर ये कदम करें, जरूर ये शो कॉज दें, या जो भी करना चाहते हैं जरूर करें। बिल्कुल हम हाजिर हैं। ये कल करना चाहते हैं ये आज करें, ये आज करना चाहते हैं अभी करें। ये देखिए, मैं इस फैसले का, इस ऐलान का मैं ना हिस्सा था और ना मैं इस चीज को एंडोर्स करता हूँ। बिल्कुल हम नहीं करेंगे। हम अपनी हुकूमत, अपने नुमाइंदों, अपने वजीर आला, देखें खान साहब जो भी, हमें फैसलों पे एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हम एक ही पार्टी है, हमारी सोच एक है, हमारी गोल्स एक हैं। हमें अपनी सारी की सारी एनर्जी हमें वो खान साहब की रिहाई की तहरीक की तरफ लेकर जानी है। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली निशिस्त पर इंतखाब कल होगा। सेनेट की निशिस्त पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम, PTI के महर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार हैं। सेनेट की निशिस्त के लिए 2 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। हुकूमती उम्मीदवार को 261 वोट की हिमायत हासिल है। अपोजिशन को 108 वोटों की हिमायत हासिल है। कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार हैं। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन कलात में फितना अल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद वाक़यात में मुलव्वस थे।
खैबर पख्तूनख्वा में फितनल ख्वारिज, बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान पर भारी वार। मलाकंड में मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 9 ख्वारिज हलाक, 8 गिरफ्तार। कलात में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जिला मलाकंड में फितनल ख्वारिज के खिलाफ 16 से 20 जुलाई तक ऑपरेशन किया गया। 4 रोजा कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस, लेवीज, CTD और जिले इंतजामिया ने हिस्सा लिया। शदीद फायरिंग के कई तबादलों में 9 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक और 8 पकड़े गए। ख्वारिज के 2 ठिकाने भी तबाह किए गए, जहां से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया गया। बलूचिस्तान के जिला कलात में 19 और 20 जुलाई की दरमियानी शब फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक किए गए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वफ़द के हमरा दौरा अफगानिस्तान। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफगान नायब वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खुसूसन इंसदाद दहशतगर्दी और कलदम तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट और सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ाकार पर बातचीत हुई। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के वतन वापसी के अमल पर गुफ्तगू हुई। दोनों वज़राए दाखिला ने पुरअमन, बक़ाए बाहमी, इस्तेहकाम और ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दी के फितने के खात्मे के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर खातून और मर्द के कत्ल की तहकीकात का हुक्म दिया था। मकतूलीन की शनाख्त हो चुकी है। वाक़या ईद से चंद रोज़ कबल पेश आया। वाक़े का मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज करके मुश्तबा कातिल गिरफ्तार कर लिया। कानून इस घिनौने मामले पर अपना रास्ता लेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दोनों बच्चों ने पसंद की शादी की थी। 1.5 साल छुप कर रहते रहे, फिर ढूंढ लिया गया। जरगे ने मियाँ बीवी को वापसी का झांसा दिया। दोनों लौट आए, फिर जरगे ने उनकी मौत का फैसला सुना दिया। पहले लड़के को गोली मारी, फिर लड़की को भी गोलियों से भून दिया गया। कुरान पाक हाथ में थामे खातून की बेबसी बता रही है मारने वाले सारे मर्द कितने गैरतमंद हैं। जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई हुई है वो पहले इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो आपके आस पास राइज है। सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा। इस जुल्म के निज़ाम के जिम्मेदार आपके भाई बंद हैं, दूसरे सूबों से आए मुसाफिर और रोजी रोटी कमाने वाले मजदूर नहीं। जिन निहत्तों को आप गोलियां मारते हैं, आपकी जद्दोजहद की बुनियाद मुनाफकत, आपकी शनाख्त वतन दुश्मनी है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ खातून और मर्द की कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वीडियो में नजर आने वाला एक शख्स गिरफ्तार हो गया है, बाकी भी जल्द गिरफ्तार होंगे। वीडियो में नजर आने वाला एक शख्स गिरफ्तार हो चुका है। वीडियो सामने आने के बाद जो है ये सरफेस हुआ है और उस पर वाक़े पर तहकीकात हो रही हैं और तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है। और जो अफराद इस वाक़े में मुलव्विस हैं, चाहे कत्ल करने वाले हों या जिरगे का इनकाद करने वाले हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई कि वाक़या कब का है। गैर मुसद्दिका इत्तलात ये हैं कि ये ईद उल अज़हा के करीब का वाक़या है और इसको फैमिलीज़ की जानिब से, कबायली मुआशरे की जानिब से रिपोर्ट नहीं किया गया।